Assalamu class. Welcome to week number 7, and today we will discuss about media access control, which is a sublayer of data link layer. In this week we will discuss network, where the medium is shared with other nodes and what problems they encounter to access the medium. To brief the lecture, we will look into the methods. Which were practiced earlier and problems associated with them, and how we encountered the problems with the passage of time. We will not talk about the channelization technique in this lecture, which is the third part. Let me clarify some of the objectives of the lecture. After delivery of the lecture, a student will be able to identify various multiple access protocol types. A student will be able to understand how the protocols are implemented over shared mediums, and they were able to identify the solution to the problems associated with multiple access protocols. When nodes or stations are connected and use a common link called a multi-point or broadcast link, we need multiple access protocol to coordinate access to the link. The problem of controlling the access to the medium is similar to the rules of speaking in a class. The procedure guarantee that the right to speak is upheld and ensure that two people do not speak at the same time, do not interrupt each other, and do not monopolize the discussion. Monopolization means take advantage and don't let other communicate, and so on. There may be different reasons. Many protocols have been devised to handle access to a shared link. All of these protocols belong to a sublayer in the data link layer called media access control. We categorize them using a figure as shown here. So the chapter is divided into 3 sections. The first section discusses random access protocol. 4 protocols, Aloha, CSMA, CSMA-CD, and CSMA-CA, are described in this section. These protocols are mostly used in LANs and WANs, which we will discuss in future chapters. The second section discusses controlled access protocols. 3 protocols, reservation, polling, and token passing, are described in this section. Some of these protocols are used in LANs, but others have some historical value. The third section, which represents the channelization protocols, we will not discuss in this lecture. So let's move on and let's talk about random access. So the first method is random access. In random access or contention method, a contention method means competition for the resources. Resource over here is actually the medium which everybody want to get access to. So we consider that no station is superior to another station and none is assigned control over another. At each instance, a station that has data to send uses a procedure defined by a protocol to make a decision on whether or not to send the data. This decision depends on the state of the medium, whether it's idle or whether somebody is using it. In other words, each station can transmit when it desires on the condition that it follows the procedure. In other words, each station can transmit when it desires on the condition that it follows predefined procedure, including testing and the state of the medium. तो इसका मतलब है कि each station जो है वो जैसे डिज़ायर करता है ट्रांसमिट करना, एज लॉन्ग एज वो कंडीशंस को फुलफ़िल कर दे, तो प्री डिफाइंड प्रोसीजर्स को फॉलो करके वो एक्सेस कर सकता है मीडियम को और डाटा ट्रांसमिट कर सकता है. तो 2 रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हम इसको रैंडम एक्सेस का नाम देते हैं. फर्स्ट की बात करते हैं. देयर इज़ नो स्केड्यूल टाइम फॉर अ स्टेशन टू ट्रांसमिट. ट्रांसमिशन इज़ रैंडम अमंग द स्टेशंस, मतलब कोई स्केड्यूल टाइम नहीं होता, जब दिल चाहे आप बात कर सकते हैं या ट्रांसमिट कर सकते हैं. तो ट्रांसमिशन जो वो रैंडम है बिटवीन द स्टेशंस. दैट इज़ वाई दिस मेथड्स आर कॉल्ड रैंडम एक्सेस. दूसरी वजह जो है वो ये है कि नो रूल स्पेसिफाई व्हेन स्टेशन शुड सेंड नेक्स्ट. तो कौन सा स्टेशन बाद में ट्रांसमिट करेगा इसका कोई पता नहीं. जब दिल चाहता है स्टेशन को मीडियम एक्सेस होगा उसके पास, वो ट्रांसमिट कर देगा. स्टेशंस कम्पीट विद वन अनदर टू एक्सेस द मीडियम. तो वो कंपटीशन उनके पास एक होता है, वो कम्पीट करते हैं. दैट इज़ वाई दिस मेथड्स आर ऑल्सो कॉल्ड कंटेंशन मेथड. तो रिसोर्स की जो लड़ाई है कि जी के मीडिया एक्सेस करना है उन्होंने और डाटा ट्रांसफ़र करना है, तो इसको हम कंटेंशन मेथड कहते हैं. रैंडम एक्सेस मेथड की बात करते हैं तो ईच स्टेशन हैज़ द राइट टू द मीडियम विदाउट बीइंग कंट्रोल्ड बाय एनी अदर स्टेशन. तो कोई भी स्टेशन मीडिया को एक्सेस कर सकता है. However, if more than one station tries to send, अगर बहुत ज़्यादा स्टेशन एक साथ सेंड करेंगे, there is an access conflict, कोलिशन हो जाएगी आपस में पैकेट्स की या डाटा की. तो आपके फ्रेम्स जो हैं या तो वो कंसिडर किए जाएंगे डिस्ट्रॉयड या वो मॉडिफाई हो जाएंगे, उनके अंदर दूसरों का डाटा भी
एंटर हो जाएगा। टू अवॉइड एक्सेस कॉन्फ्लिक्ट और टू रिजॉल्व इट व्हेन इट हैपन्स, ईच स्टेशन फॉलोज अ प्रोसीजर दैट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो प्रोसीजर है जिसमें हमारे पास कोई 4 सवाल हैं जो हम डिस्कस करेंगे। पहला सवाल ये है, व्हेन कैन द स्टेशन एक्सेस द मीडियम, वो कब एक्सेस कर सकता है। व्हाट कैन द स्टेशन डू इफ़ द मीडियम इज़ बिजी, अगर स्टेशन क्या करेगा अगर उसको ट्रांसमिशन नज़र आती है कि मीडियम के ऊपर ट्रांसमिट कर रहा है। थर्ड, हाउ कैन द स्टेशन डिटर्मिन द सक्सेस और फेलियर ऑफ द ट्रांसमिशन, उसको पता कैसे चलेगा कि उसका डाटा सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो गया है। व्हाट कैन द स्टेशन डू इफ़ देयर इज़ एन एक्सेस कॉन्फ्लिक्ट, अगर कोलिजन हो जाती है तो फिर स्टेशन क्या करेगा। तो रैंडम एक्सेस मेथड जो हम ये लेक्चर में पढ़ेंगे वो सारे इवॉल्व हुए हैं। एक वेरी इंटरेस्टिंग प्रोटोकॉल थी। ये प्रोटोकॉल 1970s में यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई ने बनाई थी और अलोहा का मतलब हवाइन लैंग्वेज में हेलो का होता है। विच यूज अ वेरी सिंपल प्रोसीजर कॉल्ड मल्टीपल एक्सेस, बहुत सिंपल प्रोसीजर था। द मेथड वॉज इम्प्रूव्ड विद द एडिशन ऑफ द प्रोसीजर दैट फोर्सेज द स्टेशन टू सेंस द मीडियम बिफोर ट्रांसमिटिंग। तो इसको इम्प्रूव भी किया गया बाद में और उसमें हम लोगों ने एक नई चीज़ डाली थी कि वो सेंस कर सके मीडियम को बिफोर वो ट्रांसमिट कर सके फ्रेम के डाटा अपना। दिस इज़ कॉल्ड कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, इसको हम लोग कैरियर सेंसिंग बोलते हैं क्योंकि वो कैरियर सेंस करता है, और मल्टीपल एक्सेस क्योंकि बहुत सारे लोग या बहुत सारे नोड्स जो होते हैं वो एक्सेस कर सकते हैं सेम मीडियम को, तो उसको हम लोग कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस बोलते हैं। दिस मेथड लेटर इवॉल्व इनटू 2 पैरेलल मेथड्स, इसमें हमने फिर 2 और मेथड्स बनाए थे जिसको हम लोग बोलते हैं CSMA-CD विच इज़ कोलिजन डिटेक्शन, और एक और था जिसमें स्टेशंस जो थे वो कोलिजन को अवॉइड कर सकते थे, इसको हम बोलते हैं CSMA-CA विच इज़ कोलिजन अवॉइडेंस प्रोटोकॉल। ठीक है, तो सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल अलोहा है हमारे पास। वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए लैंड्स के ऊपर या रेडियो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की गई थी, बनाई गई थी। बट इट कैन बी यूज्ड ऑन एनी शेड मीडियम, किसी भी शेड मीडियम में ये इस्तेमाल की जा सकती है। इट इज़ ऑब्वियस that there are potential collision in this arrangement. The medium is shared between the stations. When a station sends data, another station may attempt to do the same at the same time. तो हो सकता है जी कि एक डाटा ट्रांसमिट करना चाहे तो दूसरा स्टेशन भी डाटा ट्रांसमिट कर सकता है। द डाटा फ्रॉम द 2 स्टेशंस कोलाइड एंड बिकम ग्रैबल्ड, और आपस में मिक्स हो जाएगा। तो जो तस्वीर नज़र आ रही है आप लोगों को, ये प्योर अलोहा की है। इस पे आप लोग देख रहे हैं कि फ्रेम सेंड किए जा रहे हैं नेटवर्क के ऊपर। तो जो ओरिजिनल अलोहा की प्रोटोकॉल थी उसको हम लोग प्योर अलोहा बोलते हैं। सिंपलेस्ट थी, बहुत एलिगेंट सी प्रोटोकॉल थी। द आइडिया इज़ दैट ईच स्टेशन सेंड्स अ फ्रेम व्हेनेवर इट हैज़ अ फ्रेम टू सेंड, मतलब कि मल्टीपल एक्सेस है इसमें बहुत सारे नोड्स जो हैं वो कम्युनिकेट कर सकते हैं एक मीडियम के ऊपर। हाउएवर सिंस देयर इज़ ओनली वन चैनल टू शेयर, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन बिटवीन फ्रेम्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेशंस। फिगर में आप लोगों को एग्जांपल दिखाई गई है, उसमें आप लोगों को कोलिजन नज़र आ रही है। यहाँ पे आप लोग देखें कि आप लोगों को फ्रेम्स को नंबर दिया गया 1.1, 1.2, 2.1। तो 2.1 मतलब सेकंड स्टेशन का फ्रेम है, 1.1 मींस फर्स्ट स्टेशन का फ्रेम है, 3.1 मींस थर्ड स्टेशन का फ्रेम है, 4.1 मींस फोर्थ स्टेशन का फ्रेम है। और अगर आप देखें कि यहाँ पे जो सेकंड इंस्टेंस दिखाया है उन्होंने टाइम के ऊपर, जहाँ पे ग्रे नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये वो जगह पार्ट है जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फ्रेम्स आपस में कोलाइड कर जाएंगे और सारे गड़बड़ हो जाएंगे, एक दूसरे का डाटा जो है वो ख़राब कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तस्वीर में आप लोगों को 4 स्टेशन नज़र आ रहे हैं और ये चारों स्टेशन जो हैं वो मीडिया एक्सेस के लिए एक दूसरे के साथ कंटेंशन में आ सकते हैं मीडिया को एक्सेस करने के लिए। इस फिगर में दिखाया गया है कि ईच स्टेशन सेंड्स 2 फ्रेम्स। There are a total of 8 frames on the shared medium. Some of these frames collide because multiple frames are in contention for the shared channel. Contention मतलब resources के लिए, resources को resource यहाँ पे जो medium है उसको access करने के लिए वो frames multiple frames भेज सकते हैं। फिगर में हम ये भी दिखाया गया है कि 2 frames survive, 1 frame from station 1 and 1 from station 3। तो 2 फ्रेम्स जो हैं वो इस फिगर में दिखाए गए हैं कि वो सर्वाइव कर गए और वो अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच गए, बाकियों में कोलिजन आ गई। तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जी कि अगर किसी एक फ्रेम में भी किसी और दूसरे फ्रेम की बिट एग्जिस्ट करेगी तो वहाँ पे इसका मतलब ये है कि कोलिजन हो जाएगी और उसका एंड रिजल्ट ये होगा कि जी के वो फ्रेम्स जो हैं दोनों दोनों हमें डिस्ट्रॉय करने पड़ेंगे। इट इज़ ऑब्वियस दैट वी नीड टू रीसेंड द फ्रेम्स दैट हैव बीन डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। तो प्योर अलोहा जो प्रोटोकॉल थी वो भी एक्नॉलेजमेंट के ऊपर ही रिलाई करती है। When a station sends a frame, it expects the receiver to send an acknowledgement.
If the acknowledgement does not arrive after a timeout period, the station assumes that the frame has been destroyed and resend the same frame again. अच्छा, कोलिजन में जो है हमारे पास वो लाजमी नहीं है कि सिर्फ एक दो स्टेशन ही हों, दो अदर स्टेशन भी हो सकते हैं, जिस तरह इस डायग्राम में दिखाया गया है. इफ़ ऑल द स्टेशन ट्राई टू रीसेंड देयर फ्रेम्स आफ्टर द टाइम आउट, द फ्रेम्स विल कोलाइड अगेन. दोबारा कोलिजन हो सकता है. प्योर अलोहा इसको समझाता है इस तरह that when the timeout period passes, each stations wait a random amount of time before resending the frame. तो प्योर अलोहा में हमारे पास एक मेथड है, वो ये है कि अगर आप लोगों की कोलिजन हो जाती है तो आप लोगों को किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा बिफोर यू रीट्रांसमिट द फ्रेम. द रैंडमनेस विल हेल्प अवॉइड मोर कोलिजन. वी कॉल दिस टाइम द बैक ऑफ टाइम. तो हम लोग इसको बैक ऑफ टाइम बोलते हैं, जितनी देर आपका स्टेशन जो है वो वेट करता है बिफोर इट रीट्रांसमिट्स द फ्रेम. इसको हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम टू बैक ऑफ. प्योर अलोहा जो है वो सिर्फ बैक ऑफ टाइम के ऊपर ही रिलाई नहीं करता. इसमें एक और मेथड भी हमारे पास होता है जिसमें हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ रीट्रांसमिशन अटैम्प्ट्स देखी जाती हैं. इसको हम लोग के मैक्सिमम कहते हैं. अगर आपकी मैक्सिमम अटैम्प्ट्स पूरी हो जाएं तो जो स्टेशन होता है वो रीस्टार्ट कर देता है अपनी ट्रांसमिशन दोबारा से, और जो जितने फ्रेम्स पहले भेजे होते हैं सारे डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं. और ये जो वक्फा होता है रीट्रांसमिशन का, जब आपकी के मैक्सिमम हो चुके होते हैं, ये टाइम आउट पीरियड जो होता है इक्वल होता है टू द मैक्सिमम पॉसिबल राउंड ट्रिप प्रोपिगेशन डिले. तो राउंड ट्रिप प्रोपिगेशन डिले का मतलब होता है कि आपका पैकेट जाके वहाँ से वापस आएगा, तो बेसिकली ये ट्वाइस द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू सेंड अ फ्रेम बिटवीन द टू मोस्ट वाइडली सेपरेटेड स्टेशन के बीच में जो होता है वो यहाँ रखा जाता है. द बैक ऑफ टाइम, जिसको हम लोग टी बोल रहे हैं, इज़ अ रैंडम वैल्यू दैट नॉर्मली डिपेंड्स ऑन के, जो कि नंबर ऑफ सक्सेसफुल ट्रांसमिशन है हमारी. द फार्मूला फॉर बैक ऑफ टाइम डिपेंड्स ऑन द इम्प्लीमेंटेशन. वन कॉमन फार्मूला इज़ द बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ. इस मेथड के अंदर ईच री ट्रांसमिशन a multiplier r is equal to 0 to 2k minus 1 is randomly chosen and multiplied by tp, which is maximum propagation time. या इसके अलावा हमारे पास एक और मेथड भी होता है जिसमें हम लोग टी एफ आर, द एवरेज टाइम रिक्वायर्ड टू सेंड आउट अ फ्रेम, टू फाइंड बैक ऑफ टाइम. नोट दैट इन दिस प्रोसीजर द रेंज of the random number increases after each collision. The number value of k max is usually chosen as 15. तो यहाँ पे जो आपके सामने एल्गोरिथम लिखा हुआ है, इसमें आपके पास सिंपल या प्योर अलोहा के बारे में बात की है. यहाँ से वो स्टार्ट करेगा, फ्रेम सेंड करना चाहता है स्टेशन. के की वैल्यू को 0 है यहाँ पे, मतलब ये अटैम्प्ट्स हैं उसकी. सेंड द फ्रेम, फ्रेम सेंड करता है. लेट सपोज उसको फ्रेम, उसको जो मीडियम है वो आइडल मिलता है तो फ्रेम सेंड करता है. और वेट टाइम आउट पीरियड जो कि ट्वाइस होता है, टकरा के वापस आएगा फ्रेम आपका. तो अगर उसकी एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गई आपको तो इसका मतलब है कि आपका फ्रेम बिल्कुल सही मिल गया और ये सक्सेस है. अगर आपको उसकी एक्नॉलेजमेंट टाइम पीरियड के अंदर या टाइम के अंदर नहीं मिलती तो क्या करेगा, वो अटैम्प्ट को k+1 कर देगा, जो कि 0 है. 0+1 = 1, मतलब फर्स्ट ट्रायल दोबारा स्टार्ट करेगा और देखेगा यहाँ पे कि क्या के आप लोगों को के मैक्सिमम पे चला गया कि नहीं, जो कि के मैक्सिमम जो है 15 है यहाँ पे. अगर तो वो के मैक्सिमम हो जाता है तो वो अबॉर्ट करेगा ट्रांसमिशन को. अगर के मैक्सिमम नहीं है तो वो रैंडम नंबर चूज़ करेगा, जो कि इसको हम लोग यहाँ पे आर बोल रहे हैं, बिटवीन 0 एंड 2k-1. और उसके बाद क्या करेगा, हम लोग बैक ऑफ के लिए हम लोग इंतज़ार करेंगे. और बैक ऑफ जो होगा वो जो आपका टी बी कहलाता है वो आर मल्टीप्लाई बाई टी पी होता है या आर मल्टीप्लाई बाई टी एफ आर होता है. तो टी पी आप लोगों का राउंड ट्रिप टाइम होता है और टी एफ आर आप लोगों का एवरेज ट्रांसमिशन टाइम होता है. तो उसके बाद दोबारा ये वापस चला जाएगा यहाँ पे और दोबारा अटैम्प्ट करने की कोशिश करेगा फ्रेम को. सो लेट्स टॉक अबाउट द वर्नेबल टाइम. वर्नेबल टाइम वो होता है कि जब आप एक फ्रेम सेंड करते हैं तो वो फ्रेम जो होता है वो थ्रू आउट द मीडियम टिल द एंड नहीं पहुंचता, और पॉसिबिलिटी ये है कि दूसरा स्टेशन जो है वो आपके मीडियम को आइडल समझ के डाटा ट्रांसमिट कर सकता है. और सिमिलरली तीसरा स्टेशन जो है वो भी अगर सेंस ना कर पाए कि फ्रेम जो है वो ट्रांसमिट किया जा रहा है लाइन के ऊपर, तो वो भी मीडियम को आइडल समझ के डाटा ट्रांसमिट कर सकता है. सो द वर्नेबल टाइम, द लेंथ ऑफ टाइम इन विच देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन. तो ये वो वर्नेबल टाइम जो है हमारे पास कोलिजन हो सकती है. वी अज्यूम दैट द स्टेशन सेंड अ फिक्स्ड लेंथ फ्रेम्स. अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास जो लेंथ ऑफ जो फ्रेम है वो फिक्स है. विद ईच फ्रेम टेकिंग टी एफ आर सेकेंड्स,
TFR जो है हमारे पास वो एवरेज ट्रांसमिशन टाइम है टू सेंड अ फ्रेम। अब ये तस्वीर हमें नज़र आ रही है, फॉरनेबल टाइम दिखा रहा है फॉर स्टेशन बी। स्टेशन बी सेंड करता है फ्रेम किसी टाइम के ऊपर, टाइम टी के ऊपर। नाउ इमेजिन स्टेशन ए हैज स्टार्टेड टू सेंड इट्स फ्रेम आफ्टर t minus TFR. This lead to a collision between the frame from station B and station A. On the other hand, suppose कि स्टेशन C है वो भी ट्रांसमिशन स्टार्ट कर देता है, अपना फ्रेम भेज देता है बिफोर t plus TFR। तो यहाँ भी देखा जाए there is also a collision between frame station B and station C. फिगर को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि vulnerable time during which a collision may occur in pure aloha is 2 times the frame transmission time. तो ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है प्योर अलोहा vulnerable time is 2 multiplied by TFR, मतलब twice the average frame transfer time। और इसकी अगर एवरेज थ्रूपुट देखी जाए तो हमारे पास 18.4% आती है। मतलब है कि अगर आप लोग 100 फ्रेम भेजेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि शायद 18 फ्रेम जो हैं वो आप लोगों के सक्सेसफुली ट्रांसमिट की जा सकें, बाकी में कोलिजन हो जाएगी। तो इस डायग्राम से हम लोगों को ये पता चलता है कि जी के जो आप लोगों का कोलिजन है उसमें जो वर्नेबल टाइम होता है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन वो ट्वाइस होता है, क्योंकि जो फ्रेम आपका जनरेट होगा वो इस तरफ भी जाएगा और इस तरफ भी जाएगा। और अगर ये स्टेशन जो हैं वो उसको आइडल समझेंगे लाइंस को, तो वो भी ट्रांसमिट कर सकते हैं और आपका फ्रेम जो है वो कोलाइड कर सकता है। तो रिमेंबर कीजिए, आपको अगर याद हो, पर हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात की थी कि जब आप एक लाइन में ट्रांसफ़र करते हैं डाटा, तो डाटा आपका इधर भी जाता है, डाटा आपका इधर भी जाता है। तो यहाँ पर भी नोट्स लगी हो सकती हैं, तो जिनको आपकी ट्रांसमिशन लेट नज़र आएगी तो वो भी उस दौरान में आइडियल समझ के मीडियम को डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने इस प्रोटोकॉल को बेहतर किया था और हम लोग लेकर आए थे स्लॉटेड लोहा। स्लॉटेड लोहा ने ये प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक ठीक कर दिया था, लेकिन इसमें फिर भी हमारे पास कुछ कमियां थी। लेट्स चेक आउट स्लॉटेड लोहा। सो प्योर लोहा हैज़ अ vulnerable टाइम ऑफ ट्वाइस ऑफ फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम। This is so because there is no rule that defines when a station can send. A station may end soon after another station has started or just before another station has finished. तो किस टाइम पे भी वो ट्रांसफ़र कर सकता था, किसी दूसरे स्टेशन के स्टार्ट पे, किसी दूसरे स्टेशन का फ्रेम एंड होते हुए वो ट्रांसमिशन कर सकता था। तो स्लॉटेड लोहा वाज इन्वेंटेड टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द प्योर लोहा। तो इससे हमारी एफिशिएंसी बेहतर हो गई थी ट्रांसमिशन की। स्लॉटेड लोहा में वी डिवाइडेड द टाइम इनटू टाइम स्लॉट्स, और जो टाइम स्लॉट्स थे वो आप लोगों के जो एवरेज फ्रेम टाइम था उसके मुताबिक रखे गए थे, मतलब उस टाइम में एक फ्रेम पूरा जनरेट हो जाता था। एंड फोर्स द स्टेशन टू सेंड ओनली एट द बिगनिंग ऑफ द टाइम स्लॉट, और हमने उनको एक नया प्रोसीजर दिया, उसमें कहा कि आप लोग जब टाइम स्लॉट आपका स्टार्ट होगा तभी आप ट्रांसमिट कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। तो ये एग्जांपल जो आपको नज़र आ रही है इसमें आपको फ्रेम्स जो हैं वो स्लॉटेड नज़र आ रहे हैं टाइम के लिहाज से। बिकॉज अ स्टेशन इज अलाउड टू सेंड ओनली एट द बिगनिंग ऑफ द सिंक्रोनाइज टाइम स्लॉट, तो हमने सिंक्रोनाइज करवा लिया अपने नोट्स को कि आप लोग टाइम स्लॉट के शुरू में ट्रांसमिट करेंगे। इट मीन्स वेट, बाकी जो स्टेशन होंगे वो वेट करेंगे अंटिल द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट टाइम स्लॉट, जब तक कि अगला टाइम स्लॉट नहीं आता, मतलब बीच में वो ट्रांसमिशन नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेशंस विच स्टार्टेड एट द बिगनिंग ऑफ द स्लॉट हैज़ ऑलरेडी फिनिश्ड सेंडिंग इट्स फ्रेम। तो सब है कि एक टाइम स्लॉट के अंदर एक स्टेशन ने अपना फ्रेम भेज दिया होगा। अब देखा जाए तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे अभी भी कोलिजन की है, वो इस तरह कि अगर दो स्टेशन जो हैं वो ट्राई करते हैं सेंड करने की एट द बिगिनिंग ऑफ द सेम टाइम स्लॉट, तो वर्नेबल टाइम अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे रिड्यूस हो गया टू 1/2, आधा कर दिया गया। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास 3 स्टेशन हैं तो एक स्टेशन डाटा ट्रांसमिट कर सकेगा एक टाइम स्लॉट के अंदर, और पॉसिबिलिटी ये है कि अगले टाइम स्लॉट के अंदर 2 स्टेशन एक साथ ट्रांसमिट कर दें। तो अगर देखा जाए तो हम लोगों ने इसकी प्रोबेबिलिटी को गिरा के हाफ करवा दिया। थ्रूपुट देखा जाए स्लॉटेड लोहा का तो ये प्योर लोहा से ज़्यादा था। अगर हम देखें तो इसमें 36% हमारे पास जो थी वो थ्रूपुट थी। इसका मतलब ये हुआ कि जी के अगर आप लोग 100 फ्रेम सेंड करते हैं तो चांसेस यहाँ पे ये हैं कि 36 फ्रेम्स जो हैं आप लोगों के वो पहुँच जाएंगे रिसीवर तक। तो यहाँ तक जो प्रॉब्लम हम लोगों को आ रही थी मीडिया एक्सेस करने में वो कोलिजन की थी कि फ्रेम्स आपस में टकरा सकते हैं। इस कोलिजन को ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए हम लोगों ने एक नया मेथड बनाया, उसको हम लोग बोलते हैं कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस।
कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस जो था उसमें हमारे पास चांसेस जो थे कोलिजन के वो मिनिमाइज़ किए गए, इंक्रीज़ की गई परफॉर्मेंस को, और CSMA डेवलप किया गया। इससे जो हमारे चांसेस थे कोलिजन के वो और रिड्यूस हो गए। और कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस रिक्वायर्स दैट ईच स्टेशन फर्स्ट लिसन टू द मीडियम, पहले वो मीडियम को सुनेगा। हमने उसके अंदर एक नई चीज़ ऐड की थी कि वो लिसन टू द मीडियम करेगा, और बिफोर सेंडिंग एनी फ्रेम। इन अदर वर्ड्स, CSMA इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल कैरियर सेंस बिफोर ट्रांसमिटिंग, और इसको जितना भी कह सकते हैं लिसन बिफोर यू टॉक। CSMA कैन रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन, इससे हमें हमारी कोलिजन कम हो जाती है, बट इट कैनॉट एलिमिनेट इट, इससे हम ख़त्म नहीं कर सकते। द रीज़न फॉर दिस इज शोन इन फिगर, यहाँ पे नज़र आ रही है आप लोगों को। A space and time model of CSMA network. Stations are connected to a shared channel, usually a dedicated medium. तो आपको स्टेशन A, स्टेशन B, स्टेशन C और स्टेशन D नज़र आ रहे हैं जो कि कनेक्ट हुए मीडियम के साथ एक बस के नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास कोलिजन की पॉसिबिलिटी जो है वो एग्जिस्ट तो करती है, क्योंकि प्रोपिगेशन डिलेज जो है हमारे पास। प्रोपिगेशन डिले का मतलब ये है कि अगर एक फ्रेम को यहाँ से यहाँ पहुँचने में जितना टाइम लगता है, और क्योंकि वो इस तरफ भी जाएगा, तो ये जो टाइम लगता है, लेट्स सपोज ए फ्रेम जो है वो डी को ट्रांसमिट करना चाहता है, तो जो टाइम लगेगा फ्रेम को इस पूरे पाथ पे गुजरने में, उसको हम लोग प्रोपिगेशन डिले बोलते हैं। जब एक स्टेशन फ्रेम को सेंड करता है तो टाइम लग सकता है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में। और स्टेशन में सेंस द मीडियम एंड फाइंड इट आइडल, तो एक हो सकता है जी कि एक स्टेशन जो कि लेट्स सपोज सी स्टेशन है, ये भी ट्रांसमिट करना शुरू कर रहा है, डाटा यहाँ से यहाँ पहुँचा, और सी ने देखा, सेंस किया कि जी आइडियल है आपका मीडियम, और उसने भी ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दी। ओनली बिकॉज द फर्स्ट बिट सेंट बाय अनदर स्टेशन हैज़ नॉट येट बीन रिसीव्ड बाय द स्टेशन नंबर सी, लेट्स सपोज। तो एग्जाम्पल में अगर हम देखें, अ टाइम T1, स्टेशन B सेंस द मीडियम एंड फाइंड्स इट आइडल। B ने आइडल देखा स्टेशन को और उसने फ्रेम सेंड कर दिया। एट टाइम T2, जो कि ज़्यादा है T1 से, T2 लाजमी बाद में आएगा, स्टेशन C ने सेंस किया मीडियम एंड फाइंड्स इट आइडल, उसने भी देखा कि जी आपका जो था वो मीडियम आइडल पड़ा हुआ है, और उसने भी अपनी स्टेशन की ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दी। द फर्स्ट बिट फ्रॉम स्टेशन B हैज़ नॉट रीच्ड स्टेशन C, अभी तक B की ट्रांसमिशन C तक नहीं पहुंची थी। स्टेशन C also sends a frame, the two signals collide and both frames are destroyed। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि दोनों फ्रेम जो है वो कोलाइड करेंगे और आप लोगों की सारी ट्रांसमिशन जो है वो ज़ाया हो जाएगी। अगेन वंस अगेन यहाँ पे जो येलो पीछे जा रहा है, इसका मतलब ये है कि जी कि आप लोगों की ट्रांसमिशन होती है तो वो आगे भी जाती है पीछे भी जाती है। सिमिलरली B स्टेशन देखिए जाए, उसकी ट्रांसमिशन पीछे भी गई, उसकी ट्रांसमिशन आगे भी गई। तो जो ग्रे एरिया इसमें दिखाया गया है वो बता रहा है कि जी के एरिया वे बोथ सिग्नल्स एग्जिस्ट, तो दोनों सिग्नल जो आपस में कोलाइड कर चुके हैं, जंबल अप हो चुके हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं, और यहाँ पे कोलिजन डिटेक्शन हो गई है आप लोगों की। कोलिजन डिटेक्शन आपको तब पता चलेगी जब आप लोगों की फ्रेम की एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी। तो लाजमी जब फ्रेम कोलाइड हो गया और सब कचरा बन गया, तो जो रिसीवर होगा वो कभी भी उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा। तो आपको पता चलेगा जी कि जो ट्वाइस द प्रोपिगेशन टाइम था आप लोगों का वो गुजर चुका है, और आप लोगों की एक्नॉलेजमेंट का टाइम अप हो गया है, तो आप स्टेशन को पता चल जाएगा कि जी कोलिजन हो गई है। तो अगर CSMA की अगर हम लोग वर्नेबल टाइम देखें, तो CSMA का वर्नेबल टाइम इज़ द प्रोपिगेशन टाइम। दिस टाइम नीडेड फॉर अ सिग्नल टू प्रोपिगेट फ्रॉम वन एंड ऑफ द मीडियम टू द अदर, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिशन को पहुंचने में जो टाइम लगेगा उसको हम प्रोपिगेशन टाइम बोलते हैं। When a station sends a frame and any other station tries to send the frame during this time, जब वो ट्रांसमिट कर रहा था, कोलिजन तो होगी। But if the first bit of the frame reaches the end of the medium, अगर पहली बिट पूरे मीडियम में फैल जाए, एवरी स्टेशन विल ऑलरेडी हैव हर्ड द बिट एंड विल रिफ्रेन फ्रॉम सेंडिंग, तो डाटा ट्रांसमिट नहीं करेंगे, रिफ्रेन करेंगे सेंडिंग से। तो इस फिगर के अंदर हम लोगों ने वर्स्ट केस सिनेरियो को डिस्कस किया है। द लेफ्ट मोस्ट स्टेशन A sends a frame in time T1, यहाँ पे नज़र आ रहा है आप लोगों को T1, which reaches the rightmost station D, यहाँ पे at T1 प्लस TP, जो कि प्रोपगेशन टाइम है, और T1 जो उसको
जिस टाइम पे उसने जनरेट किया। द ग्रे जोन यहाँ पे दिखाया जा रहा है, वो शो कर रहा है वर्नेबल टाइम। ये सारा वर्नेबल टाइम है आपका, जो इतना ग्रे दिखाया गया है, इन टाइम इन स्पेस। तो इस टाइम के ऊपर कोई भी स्टेशन इस मीडियम को आइडल समझ के ट्रांसमिट कर सकता है। तो कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस में ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही थी कि जी ट्रांसमिशन की जा सकती है और कोलिजन फिर भी हो सकती है। तो इस कोलिजन को हम लोगों ने ओवरकम करने के लिए कुछ परसिस्टेंट मेथड निकाले थे, जो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किए CSMA के अंदर। वो परसिस्टेंट मेथड जो थे, वो बिहेवियर था आप लोगों के नोट्स का सिस्टम जो भी नेटवर्क पे लगी हुई हैं, और उसमें हमारे पास वन परसिस्टेंट, नॉन परसिस्टेंट एंड पी परसिस्टेंट 3 मेथड्स हैं। तो ये जो भी आपको तस्वीर नज़र आ रही है, इसके अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपका स्टेशन है और वो ट्रांसमिट करना चाहता है और उसको चैनल जो है वो बिजी मिलता है, तो वो क्या करेगा। लेट्स टॉक अबाउट वन परसिस्टेंट। वन परसिस्टेंट मेथड इज़ सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। इस मेथड के अंदर स्टेशन जब देखता है कि लाइन आपकी खाली है, फ्रेम को सेंड कर देता है इमीडिएटली with the probability of 1. This method has the highest chances of collision क्योंकि दो और दो ज़्यादा स्टेशन लाइन को आइडल देख सकते हैं और वो भी फ्रेम्स उसी तरह इमीडिएटली भेज सकते हैं। सेकेंड मेथड जो है वो नॉन परसिस्टेंट है। इन द नॉन परसिस्टेंट मेथड अ स्टेशन हैज़ अ फ्रेम टू सेंस द लाइन, लाइन को देखता है। अगर लाइन खाली है इमीडिएटली भेज देगा, अगर लाइन नहीं खाली तो वेट करेगा रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम और दोबारा सेंस करेगा लाइन को भेजने से पहले। द नॉन परसिस्टेंट अप्रोच रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ कोलिजन। इससे हमारी काफ़ी हद तक कोलिजन कम हो जाती है, बिकॉज इट इज़ अनलाइकली दैट टू और मोर स्टेशन विल वेट द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। तो जो उसने वेट किया, वो वेट जो होता है वो रैंडमली कैलकुलेट किया जाता है, तो लाजमी नहीं है कि सब स्टेशन का वेट टाइम सेम ही निकल आए। अगर देखा जाए कि ये जो मेथड हमने भी डिस्कस किया है, ये आपकी एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देता है नेटवर्क की, बिकॉज द मीडियम रिमेन्स आइडल व्हेन देयर मे बी स्टेशंस विद फ्रेम्स टू सेंड। वो जितनी देर बैक ऑफ के ऊपर जो टाइम उसने रैंडमली जनरेट किया उस पर वेट करेगा, तो उस टाइम पे आपका जो लाइन है वो आइडल पड़ी रहेगी, तो इस वजह से आपकी जो एफिशिएंसी है वो गिर जाती है नेटवर्क की। तो हमारे पास जो लास्ट है विच इज़ कॉल्ड पी परसिस्टेंट, वो ज़्यादा बेहतर कंसिडर किया जाता है। द पी परसिस्टेंट मेथड इज़ यूज्ड इफ द चैनल हैज़ टाइम स्लॉट with a slot duration equal to or greater than the maximum propagation time। तो ये टाइम स्लॉट्स होती हैं आप लोगों की प्रोपगेशन टाइम के इक्वल होती हैं या उससे थोड़ी ज़्यादा होती हैं। द पी परसिस्टेंट अप्रोच कंबाइंस द एवरेज ऑफ द अदर टू स्ट्रेटजीज जो मैं पीछे पढ़ी, वन परसिस्टेंट एंड नॉन परसिस्टेंट। इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ कोलिजन एंड इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी एज वेल। इस मेथड के अंदर स्टेशन जब देखता है कि लाइन खाली है, वो कुछ स्टेप्स फॉलो करता है। वो स्टेप्स क्या हैं? नंबर 1, विद प्रोबेबिलिटी पी कोई प्रोबेबिलिटी निकालता है पी और स्टेशन फ्रेम सेंड कर देता है। नंबर 2 जो है उसमें वो दो काम करता है। विद प्रोबेबिलिटी क्यू जो कि 1 - पी होती है, जो कि नेगेटिव प्रोबेबिलिटी हम जिसको बोलते हैं, द स्टेशन वेट्स फॉर द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट टाइम स्लॉट एंड चेक्स द लाइन अगेन। इफ द लाइन इज आइडल तो वो वापस स्टेप में 1 पे चला जाएगा, जो कि फ्रेम को ट्रांसमिट कर देना उसने किसी प्रोबेबिलिटी के साथ। एल्स उसके बाद क्या करेगा, अगर अदरवाइज अगर उसको लाइन बिजी मिलती है तो वो इस तरह कंसिडर करेगा इसको कि जिस तरह फ्रेम आप लोगों का कोलाइड हो जाता है, और वो क्या करेगा, बैक ऑफ प्रोसीजर पर चला जाएगा और बैक ऑफ कैलकुलेट करेगा। तो ये आपके सामने फ्लो चार्ट्स हैं वन परसिस्टेंट के, जिसमें आप लोग देखते हैं कि आइडल है तो ट्रांसमिट करता है, अगर बिजी है तो दोबारा उसको रिकन्सिडर करता है चैनल को। सिमिलरली नॉन परसिस्टेंट अगर देखें तो वो चैनल को देखता है कि अगर आइडल है तो ट्रांसमिट कर देगा, अगर बिज़ी है तो वेट टाइम रैंडमली वेट करेगा और उसके बाद फिर वो ट्रांसमिट कर देगा। फिर सबसे अच्छा मेथड जो है हमारे पास पी परसिस्टेंट है। उसके अंदर वो चैनल को देखेगा, अगर वो आइडल है तो एक प्रोबेबिलिटी निकालेगा उसकी, और क्या करेगा, प्रोबेबिलिटी जो होगी वो Q1 - P होगी और सेंड कर सकता है ट्रांसमिशन को। अगर उसको ज़्यादा होगी प्रोबेबिलिटीज़ ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी P अगर निकलती है उसके पास, तो वेट करेगा एक टाइम स्लॉट के लिए और चैनल को दोबारा एक्सेस करेगा। तो जब दोबारा देखेगा चैनल को, तो अगर चैनल बिज़ी होगा तो वो फिर उसको समझेगा कोलिजन हो गई है, बैक ऑफ एल्गोरिथम को रन कर देगा। अदरवाइज़ अगर बिज़ी नहीं है, आइडल है, तो दोबारा प्रोबेबिलिटी के साथ वो आउटकम के साथ ट्रांसमिट कर सकता है। तो अगर देखा जाए कि हमारे पास जो परसिस्टेंट स्ट्रैटेजी थी उसमें नॉन परसिस्टेंट बेहतर था वन परसिस्टेंट से,
क्योंकि उसकी ज़्यादा चांसेस थे कोलिजन के। वेयर नॉन परसिस्टेंट जो था वो उसके कोलिजन के चांसेस तो कम थे, लेकिन वो एफिशिएंसी ऑफ नेटवर्क गिरा देता है। अगर पी परसिस्टेंट देखा जाए तो वो रिड्यूसेस चांसेस ऑफ कोलिजन एंड इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ कंबाइंड द अदर टू स्ट्रेटजीज। तो दोनों स्ट्रेटजीज को कंबाइन करके वो एफिशिएंसी को बेहतर कर देता है नेटवर्क की, उनसे बेहतर है दोनों से। लेट्स मूव ऑन, लेट्स टॉक अबाउट CSMA-CD कोलिजन डिटेक्शन। एक नया मेथड जो इंट्रोड्यूस कराया गया था प्रोटोकॉल्स के अंदर कि वो डिटेक्ट कर सकें। तो इसमें हमारे पास जो स्टेशन था वो जब ट्रांसमिट करता था तो उसके पास एक और पोर्ट होती थी जिससे वो सेंस भी कर रहा होता था कि कहीं उस ट्रांसमिशन के दरमियान में कोई और डाटा तो उसको रिसीव नहीं हो रहा। तो देखा जाए CSMA जो मेथड था हमारे पास वो स्पेसिफाई नहीं करता था कोई प्रोसीजर कोलिजन के बाद क्या होना है। तो कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन CSMA-CD इस आर्गूमेंट को हैंडल करता है कोलिजन के। इस मेथड के अंदर स्टेशन मॉनिटर्स द मीडियम आफ्टर इट सेंड्स द फ्रेम टू सी इफ दिस ट्रांसमिशन वाज सक्सेसफुल। अगर ऐसा हो गया, ट्रांसमिशन सक्सेसफुल हुई, तो वो फिनिश कर देता है अपनी ट्रांसमिशन को। हाउएवर इफ देयर इज अ कोलिजन द फ्रेम इज सेंट अगेन, तो फ्रेम दोबारा भेज जाता है। So to better understand CSMA-CD, let us look at the first bit transmitted by the two stations involved in the collision. Although each station continues to send bits in the frame until it detects the collision, we show what happens at the first bit collide in this figure here. Station A and Station C are involved in the collision. तो हमारे पास दो स्टेशन हैं, स्टेशन A ट्रांसमिट कर रहा है और स्टेशन C ट्रांसमिट कर रहा है, और इनके फ्रेम आपस में कोलाइड होते हैं। तो फिर क्या होता है देखा जाए तो एट टाइम T1 स्टेशन ए ने एग्जीक्यूट किया है परसिस्टेंस प्रोसीजर और उसने सेंड करना शुरू किए बिट्स फ्रेम की। टाइम 2 के ऊपर स्टेशन सी, जिसने इसको अभी तक नहीं देखा, यहाँ तक नहीं पहुँचा था। अगर आप देखें तो 2 यहाँ पे था, यहाँ पे जा रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे था जब बिट्स, तो स्टेशन सी को नज़र आया कि जी फ्रेम आपका जो मीडियम है वो आइडल है, और उसने ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दी। स्टेशन सी एग्जीक्यूट्स इट्स परसिस्टेंस प्रोसीजर और फ्रेम ट्रांसमिट करना शुरू कर देता है अपना, जो कि प्रोपगेट करता है बोथ साइड, जो कि लेफ्ट और राइट है। द कोलिजन अकर सम टाइम आफ्टर T2। तो अगर देखें तो T2 के बाद हमारे पास यहाँ पे कोलिजन डिटेक्ट हुई है। स्टेशन सी डिटेक्ट्स अ कोलिजन एट टाइम T3 व्हेन इट रिसीव्स द फर्स्ट बिट ऑफ फ्रेम A। तो A का फ्रेम जब उसको महसूस हुआ तो उसको पता चला जी हमारे पास कोलिजन हो चुकी है। स्टेशन सी जो है वो इमीडिएटली अबॉर्ट कर लेता है अपनी ट्रांसमिशन। स्टेशन ए भी डिटेक्ट करता है टाइम T4 के ऊपर, क्योंकि इसका डाटा यहाँ पहुँचने में टाइम T4 हो चुका है, और अबॉर्ट कर लेता है अपनी ट्रांसमिशन भी। लुकिंग एट द फिगर वी सी दैट ए ट्रांसमिट फॉर द ड्यूरेशन T4 minus T1, C transmits for the duration T3 minus T2. Now that we know the time durations for the two transmissions, we can show a more complete graph in next figure. तो CSMA-CD को सक्सेसफुल बनाने के लिए we need to restrict the frame size। तो हमने क्या किया, फ्रेम साइजेस को गिरा दिया। Before sending the last bit of the frame, the sending station must detect a collision। जब वो ट्रांसमिट करेगा तो उसने कोलिजन को डिटेक्ट करना है। अगर कोई कोलिजन होती है तो ट्रांसमिशन अबॉर्ट कर दी जाती है। This is so because the station, once the entire frame is sent, does not keep a copy of the frame and does not monitor the line for collision detection। तो नुकसान हमारा यहाँ पे ये है कि जब आपके फ्रेम की आखिरी बिट जा रही है और उस टाइम तक कोलिजन डिटेक्ट नहीं हुई, तो वो फ्रेम को अपने पास अपनी मेमोरी से डिस्कार्ड कर देता है, और यहाँ पे हमारे लिए फिर प्रॉब्लम आ सकती है रीट्रांसमिशन में भी। तो यहाँ पे CSMA-CD के नेक्स्ट चीज़ का ख्याल रखा गया वो ये कि जो फ्रेम की ट्रांसमिशन है वो मस्ट बी एटलीस्ट 2 times द मैक्सिमम प्रोपगेशन टाइम TP। तो ट्वाइस होनी चाहिए आप लोगों की प्रोपगेशन, मैक्सिमम प्रोपगेशन टाइम के। इसको रीज़न को समझने के लिए हमारे पास फिर आगे एग्जांपल भी है, अगर आपको टाइम मिले तो आप वो एग्जांपल देखिएगा। एक वर्स्ट सिनेरियो डिस्कस करते हैं। इफ़ द टू स्टेशंस इन्वॉल्व्ड इन अ कोलिजन आर द मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट, बहुत दूर हैं एक दूसरे से, द सिग्नल फ्रॉम द फर्स्ट टेक्स टाइम TP, उसको एक टाइम लगता है प्रोपगेट करने में दूसरे स्टेशन तक जो कि बहुत दूर है उससे, एंड द इफेक्ट ऑफ द कोलिजन टेक्स अनदर टाइम TP टू रीच द फर्स्ट। और कोलिजन अगर हो भी जाती है तो पहले के पास पहुंचते पहुंचते उसको और मज़ीद टाइम लग जाता है।
So this requirement is that the first station must still be transmitting after twice the propagation time. तो कहना ये चाह रहे हैं कि जी आप लोगों की जो फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम है वो ट्वाइस होनी चाहिए प्रोपिगेशन टाइम से, ताकि जब कोलिजन हो भी जाए तो वो रिसीव कर सके, समझ सके कि जी के ये फ्रेम जो मैं सेंड कर रहा हूँ ये इसकी कोलिजन हो गई है, और वो अबॉर्ट कर सके ट्रांसमिशन को और वो फ्रेम दोबारा भेज सके. सो नाउ लेट्स लुक एट द फ्लो डायग्राम ऑफ CSMA-CD. It is similar to one for the Aloha protocol, but there are some differences. तो पहला डिफरेंस देखा जाए is the addition of the persistence process, जो कि हम लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है. इस प्रोसेस में we need to sense the channel before we start sending the frame by using one of the persistent process, जो कि हमने पीछे पढ़ा, one persistent, non persistent या p persistent. The corresponding box can be replaced by one of the persistent process. दूसरा डिफरेंस जो हम लोग को नज़र आ रहा है वो फ्रेम ट्रांसमिशन का है. In Aloha, we first transmit the entire frame and then wait for the acknowledgement. जबकि CSMA-CD में transmission and collision detection are continuous process. We do not send the entire frame and then look for the collision. The station transmit and receive continuously and simultaneously. मतलब उसके पास एक another port होती है जो कि bidirectional port जिसको हम लोग बोलते हैं. We use a loop to show the transmission is a continuous process. We constantly monitor in order to detect one of the two conditions. वो दो conditions क्या है जिनको हम लोग monitor करते हैं? Either transmission is finished or the collision is detected. कोई सा भी इवेंट अब जब होगा तो हमारी ट्रांसमिशन रोक दी जाएगी. जब हम लोग लूप से बाहर निकलते हैं, if a collision has been detected, it means that transmission is complete, the entire frame is transmitted, otherwise a collision has occurred. जो तीसरा डिफरेंस में हमें नज़र आ रहा है वो ये है कि एक जैमिंग सिग्नल है इसमें हमारे पास, और वो जैमिंग सिग्नल जो है मेक श्योर करता है कि दैट अदर स्टेशंस बिकम अवेयर ऑफ द कोलिजन, ताकि दूसरे स्टेशंस भी अवेयर हो सकें कि कोलिजन हो गई है और वो ट्रांसमिशन को रोक दें. तो क्वेश्चन ये है कि जी बाकी स्टेशन को पता कैसे चलेगा कि ट्रांसमिशन रोकनी है. तो वी कैन से कि जी कि हमारे पास जो एनर्जी लेवल है चैनल के अंदर उसमें हमारे पास तीन वैल्यूज़ होती हैं. या तो आपका जो चैनल होगा उसकी एनर्जी वैल्यू ज़ीरो होगी, नॉर्मल होगी या एबनॉर्मल होगी. अगर उसकी एनर्जी लेवल ज़ीरो होगा तो इसका मतलब है कि आप लोगों का चैनल जो वो आइडल है, उसमें कोई ट्रांसमिशन नहीं हो रही. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका ज़ीरो नज़र आ रहा है आप लोगों को, और उसको बता रहा है कि आइडल है. देखा जाए कि नॉर्मल जब आप लोगों के पास लेवल होता है एनर्जी का, इसका मतलब होता है कि स्टेशन ने सक्सेसफुली कैप्चर कर लिया चैनल और वो फ्रेम सेंड कर रहा है. अब नॉर्मल लेवल की बात करें, देयर इज़ अ कोलिजन and the level of the energy is twice the normal level. A station that has a frame to send or is sending a frame needs to monitor the energy level to determine if the channel is busy या idle or in collision mode. तो twice या abnormal वैल्यू शो करता है कि collision हो गई है. तो थ्रूपुट की बात कर लें तो P persistent जो होता है हमारे पास अप्रोच, उसके अंदर जो हम लोग P की वैल्यू डिफाइन करते हैं वो थ्रूपुट को डिफाइन करता है. अगर हम लोग वन परसिस्टेंट मेथड की बात करें तो उसमें हमारे पास को 50% चांसेस होते हैं कि अगर आप 100 फ्रेम भेजें तो 50 फ्रेम पहुंच जाएंगे. फॉर द नॉन परसिस्टेंट मेथड द मैक्सिमम थ्रूपुट कैन गो अप टू 90%. ट्रेडिशनली CSMA-CD जो है वो हम लोग ईथरनेट में इस्तेमाल करते हैं फॉर ट्रांसमिशन ऑफ फ्रेम्स बिटवीन नोड्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर प्रोटोकॉल जो कि बेसिकली वायरलेस के लिए बनाई गई थी, विच इज़ कैरी सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस. वायरलेस नेटवर्क्स के लिए थी. कोलिजन जो थी वो अवॉइड की जाती थी. इसमें हमारे पास तीन स्ट्रैटेजीज थी. नंबर वन थी इंटरफ्रेम स्पेसिंग, दूसरा कंटेंशन विंडो, और तीसरी हमारे पास एक्नॉलेजमेंट्स थी, जैसा कि इस डायग्राम में शो किया गया. तो इस डायग्राम में आपको तीन चीज़ें नज़र आ रही हैं. नंबर वन, इंटरफ्रेम स्पेसिंग यहाँ पे है, कंटेंशन विंडो आपके पास यहाँ पे है, और एक्नॉलेजमेंट्स आपके पास यहाँ पे हैं. तो नंबर वन, इंटरफ्रेम स्पेसिंग क्या होती है? इसमें हम लोग कोलिजन को अवॉइड करते हैं, जिसमें हम लोग ट्रांसमिशन को रोकते हैं या डिले करवाते हैं, इवन कि अगर चैनल आप लोगों को आइडल क्यों ना मिले. When an idle channel is found, the station does not send immediately, एकदम डाटा सेंड नहीं करता. It waits for the time called interframe space, IFS का वेट करता है. Even though the channel may appear idle when it is sensing, या जब उसको सेंस किया गया था. A distant station may have already started transmission, तो कहीं पे दूर किसी स्टेशन ने हो सकता है कि ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दी हो. The distant station signal
हैज़ नॉट येट रीच्ड दिस स्टेशन, और जो ट्रांसमिशन दूसरे स्टेशन ने की है वो अभी आपको शायद ना मिली हो. द IFS टाइम अलाउज द फ्रंट ऑफ द ट्रांसमिटर सिग्नल बाय द डिस्टेंस स्टेशन टू रीच दिस स्टेशन जिससे आप ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं. आफ्टर वेटिंग एन IFS टाइम, अगर चैनल आपको फिर भी आइडल मिलता है तो स्टेशन जो डाटा सेंड कर देता है. बट इट स्टिल नीड्स टू वेट टाइम इक्वल टू द कंटेंशन विंडो, जो कि आगे डिस्कस करते हैं कंटेंशन विंडो क्या होती है. तो अगर उसको खाली मिलता है उसके बावजूद IFS टाइम के बाद, तो उसने कंटेंशन विंडो का टाइम को भी नोट करना होता है. द IFS वेरिएबल कैन ऑल्सो बी यूज टू प्रायोरिटाइज स्टेशंस और फ्रेम टाइप्स. तो हम लोग IFS के ऊपर हमारे पास डिफरेंट किस्म के फ्रेम्स होते हैं जिसमें हम लोग प्रायोरिटाइज भी कर सकते हैं फ्रेम्स को अगर उन्होंने हाई प्रायोरिटी पे मूव करना हो. So let's talk about the contention window. Contention window is an amount of time divided into slots. A station that is ready to send choose a random number of slot as its wait time. The number of slots in the window changes according to the binary exponential backoff strategy जो पीछे पढ़ी हम लोगों ने. इसका मतलब है कि it is set to one slot the first time and then doubles each time the station cannot detect an idle station after the IFS frame time. This is very similar to the pre-persistent method. One interesting point about the contention window is that the station needs to sense the channel after each time slot. तो हर time slot के बाद वो दोबारा channel को sense करेगा. However, if the station finds the channel busy, it does not restart the process. It just stop the timer and restart it when the channel is sensed as idle. तो उसको priority रहती है और वो ज़्यादा देर से इंतज़ार कर रहा था तो वो पहले ट्रांसमिट करेगा सबसे. तीसरा मेथड जो हमारे पास वो एक्नॉलेजमेंट है. विद ऑल दिस प्रिकॉशंस देयर स्टिल मे बी अ कोलिजन रिजल्टिंग इन डिस्ट्रॉइंग अ डाटा. इसके अलावा डाटा मे बी करप्टेड ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, रास्ते में ख़राब भी हो सकता है. द पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट एंड द टाइम आउट टाइमर कैन हेल्प गारंटी दैट द रिसीवर हैज़ रिसीव्ड द फ्रेम. तो रैंडम एक्सेस में हम लोगों ने अलोहा, CSMA और CSMA-CD को देखा. इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो कि अब इस्तेमाल नहीं होती हैं, लेकिन उनकी कुछ हिस्टोरिकल वैल्यू हैं जो कि हमें हेल्प करती हैं समझने में बाकी टेक्निक्स को. इन टेक्निक्स को हम लोग कंट्रोल्ड एक्सेस बोलते हैं. तो कंट्रोल्ड एक्सेस में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास रिजर्वेशन क्या होती हैं, हम लोग देखेंगे पोलिंग क्या होती है, और सिमिलरली पोलिंग के साथ हम लोग एक चीज़ और देखेंगे जो कि टोकन पासिंग है, कि ये किस तरह हेल्पफुल होती हैं मल्टीपल एक्सेस मीडियम को एक्सेस करने के लिए. कंट्रोल्ड एक्सेस के अंदर स्टेशन जो होते हैं वो एक दूसरे से कंसल्ट करते हैं टू फाइंड आउट के विच स्टेशन हैज़ द राइट टू सेंड, कि ये कौन भेजना, किसको भेजना चाहिए डाटा. अ स्टेशन कैन नॉट सेंड अनलेस इट हैज़ बीन ऑथराइज्ड बाय अदर स्टेशंस. ये तीन जो मेथड्स हैं इनको हम देखते हैं. तो पहला मेथड जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है उसको हम बोलते हैं रिजर्वेशन. रिजर्वेशन मेथड के अंदर स्टेशन नीड्स टू मेक अ रिजर्वेशन बिफोर सेंडिंग डाटा. टाइम इज़ डिवाइडेड इनटू इंटरवल्स, और जितने भी आपके पास इंटरवल्स होते हैं उसमें वो रिजर्व फ्रेम्स जो होते हैं वो ट्रांसमिट किए जाते हैं. If there are n stations in the system, there are exactly n reservation mini slots in reservation frames. तो उतने ही आपके पास slots भी होंगे. Each mini slot belongs to a station. When a station needs to send a data frame, it makes a reservation in its own mini slot. The station that have made reservations can send their data frames after the reservation frame. तो reservation frame के बाद ही अपना डाटा भेज सकता है. तो यहाँ पे देखें आपके पास टाइम स्लॉट थी, उस टाइम स्लॉट में जहाँ पे उसने रिजर्वेशन की वहाँ पे 1 हो गया, जिन्होंने रिजर्वेशन की वो 0 रहेगा. तो अगर इसने 1 किया तो डाटा इसका आएगा, फिर इसका डाटा आएगा और फिर उसके बाद इसका डाटा आएगा. इस फिगर के अंदर आपको स्टेशन दिखाए गए हैं 5 और 5 मिनी स्लॉट रिजर्वेशन फ्रेम दिखाई गई है. द फर्स्ट इंटरवल ओनली स्टेशन 1, 3 एंड 4 हैव मेड रिजर्वेशन. इन द सेकेंड इंटरवल ओनली स्टेशन 1 हैज़ मेड रिजर्वेशन. तो इसमें सिर्फ आपको वही ट्रांसमिट कर सकता है डाटा जिसने इंटरवल को रिजर्व किया हुआ है. सेकंड मेथड जो है हमारे पास उसको हम लोग बोलते हैं पोलिंग. पोलिंग में क्या होता है, पोलिंग वर्क्स विद टोपोलॉजीज इन विच वन डिवाइस इज डेजिग्नेटेड एज अ प्राइम स्टेशन. तो हमारे पास एक प्राइमरी स्टेशन होता है जो कंट्रोल कर होता है बाकी सबको, और जो अब दूसरी डिवाइसेज होती हैं उनको हम लोग सेकेंडरी स्टेशन बोलते हैं. ऑल डाटा एक्सचेंज मस्ट बी मेड थ्रू द प्राइमरी डिवाइस. सारी की सारी जो कम्युनिकेशन है उसकी इजाज़त प्राइमरी स्टेशन देगा, इवन व्हेन द अल्टीमेट डेस्टिनेशन इज़ अ सेकेंडरी डिवाइस.
The primary device controls the link. The secondary devices follow its instructions. तो चाहे डाटा A से B को जाना हो, जिस तरह इस डायग्राम में दिखाया गया है, या A से प्राइमरी को जाना हो, तो सब कंट्रोल प्राइमरी कर रहा होता है. It is up to the primary device to determine which device is allowed to use the channel at a given time. The primary device therefore is always the initiator of a session. This method uses poll and select function to prevent collision. However, the drawback is if the primary station fails, the system goes down. अगर primary station बंद हो गया, पूरा system आपका ज़ाया हो जाएगा. तो इसमें आप लोग देखें कि हमारे पास दो functions हैं, एक select का function है और एक हमारे पास poll का function है. ये क्या function है? Let's check them out. The select function is used whenever the primary device has something to send. जब primary device में कुछ भेजना है, select का आप लोगों को function मिलेगा. Remember that the primary controls the link. If the primary is neither sending nor receiving data, it knows the link is available क्योंकि सारा control ही वो कर रहा है. If it has something to send, the primary device sends it. What it does not know whether the target device is prepared to receive or not. So the primary must alert the secondary to the upcoming transmission and wait for the acknowledgement. Before sending data, the primary creates and transmits a select SEL frame, one field of which includes the address of the intended secondary. तो उसके अंदर आपके पास एड्रेस होता है सेकेंडरी डिवाइस का. तो सिमिलरली सेकंड पार्ट में पोल होता है हमारे पास. पोल में क्या होता है कि जब प्राइमरी स्टेशन जो होता है वो सेकेंडरी स्टेशन से पूछता है कि जी आपने कुछ चीज़ सेंड करनी है, तो वो पोल का फ्रेम भेजता है. अगर सेकेंडरी स्टेशन ने कुछ चीज़ डाटा ट्रांसमिट नहीं करनी होती तो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट कर देता है. तो आपका प्राइमरी स्टेशन जो होता है वो फिर दूसरी स्टेशन को पोल करता है, भाई आपने कुछ भेजना है. अगर उसे डाटा भेजना होता है तो डाटा भेजता है और उसकी फिर एक्नॉलेजमेंट कर दी जाती है. दिस इज़ हाउ पोल वर्क्स. लास्ट हमारे पास जो मेथड है उसको हम बोलते हैं टोकन पासिंग. इन द टोकन पासिंग मेथड द स्टेशन इन अ नेटवर्क आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ लॉजिकल रिंग. ये जहाँ पे आप लोगों के पास रिंग होते हैं वहाँ पे टोकन पासिंग चलती है. इन अनदर वर्ड, फॉर ईच स्टेशन देयर इज़ अ प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर. उसके पीछे भी कोई होता है, उसके आगे भी कोई होता है. द प्रीडिसेसर्स आर, जो पीछे वाले स्टेशन होते हैं विच इज़ लॉजिकली बिफोर द स्टेशन इन द रिंग, और सक्सेसर वो होते हैं जो उस स्टेशन से रिंग में आगे होते हैं. रिंग में आगे पीछे किस कौन डिफाइन करता है? आपका जो रिंग होता है वो किसी एक डायरेक्शन में चल रहा होता है. यहाँ पे यूजली ये देखें, यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज है और ये ऊपर से क्लॉकवाइज है. तो ये ड्यूल रिंग है. बेसिकली ड्यूल रिंग में आप लोगों को जो सेकंड पार्ट ऑफ द रिंग होता है वो रिडंडेंसी होती है. अगर आपका कहीं पे ये कट हो जाए तो फिर ये वाला लिंक इस्तेमाल किया जाता है. अदरवाइज एक रिंग में एक ही डायरेक्शन इस्तेमाल की जाती है डाटा पास करने के लिए. द करंट स्टेशन इज़ द वन, करंट स्टेशन वो होता है दैट इज़ एक्सेसिंग द चैनल एट द मोमेंट. द राइट टू दिस एक्सेस हैज़ बीन पास्ड फ्रॉम द प्रीडेसेसर टू द करंट स्टेशन. तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो ये है कि जी कि आपने ये चैनल में जो डाटा पास करना है इसके राइट किस तरह दिया जाता है कि जी कि अब आप ट्रांसमिट कर लें और मैं नहीं ट्रांसमिट कर रहा. इस मेथड के अंदर स्पेशल पैकेट हमारे पास होता है, उसको बोलते हैं टोकन, जो कि सर्कुलेट करता है रिंग के अंदर. द पोजेशन ऑफ द टोकन गिव्स द स्टेशन द राइट टू एक्सेस द चैनल एंड सेंड इट्स डाटा. तो जो आपके पास वो टोकन होता है, वो जो फ्रेम स्पेशल होता है, वो आपको एक्सेस ग्रांट करता है. When a station has some data to send, it waits until it receives the token from its predecessor. It then holds the token and sends its data. When the station has no more data to send, it releases the token. तो वो token छोड़ देता है, passing it to the next logical station in the ring. The station cannot send data until it receives the token again in the next round. जब तक वो घूम के उनके पास वापस नहीं आता वो token. In this process, when a station receives the token and has no data to send, it just passes data to the next station. तो वो क्या करता है, अगर आपके पास टोकन आ गया और आपने डाटा सेंड नहीं करना चाहते तो वो टोकन आप आगे फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि अगले की बारी आए, उसने कुछ सेंड करना है तो वो सेंड कर सके. टोकन मैनेजमेंट इज नीडेड फॉर दिस एक्सेस मेथड. स्टेशन मस्ट बी लिमिटेड इन द टाइम दे कैन हैव पोजेशन ऑफ द टोकन. तो कुछ टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, कितने टाइम के लिए वो टोकन अपने पास रख सकता है. द टोकन मस्ट बी मॉनिटर्ड टू इंश्योर इट हैज़ नॉट बीन लॉस्ट और डैमेज. ऐसा ना हो कि जी के टोकन का फ्रेम ही आपका डैमेज हो जाए, तो ये ना हो, सिस्टम में वो ख़राबी भी आ सकती है, तो इसका भी ख्याल रखना पड़ता है, उसको मैनेज करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ स्टेशन दैट इज़ होल्डिंग द टोकन फेल्स
जिसके पास टोकन था वो सिस्टम में कोलैप्स कर गया, शट डाउन हो गया, द टोकन विल डिसअपीयर फ्रॉम द नेटवर्क, तो नेटवर्क से वो गुम हो सकता है। अनदर फंक्शन ऑफ टोकन मैनेजमेंट इज टू असाइन प्रायोरिटीज टू द स्टेशंस एंड टू द टाइप ऑफ डाटा बीइंग ट्रांसमिटेड, किस किस्म का डाटा है ताकि उस लिहाज से प्रायोरिटीज भी दी जा सकें। And finally, the token management is needed to make low priority stations release the token to high priority stations, ताकि वो फॉरवर्ड कर सकें उस टोकन को जिन्होंने ज़्यादा हाई प्रायोरिटी डाटा देना है। तो दिस इज़ इनफ फॉर दिस वीक। वी हैव लर्न अ लॉट अबाउट द मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स। थैंक यू वेरी मच, और इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और नेक्स्ट वीक में हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इथरनेट के बारे में थोड़ा सा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर,